लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज द रिएक्शन in which the heavy nucleus, that is a radioactive nucleus, obviously, breaks into two lighter nuclei. When it breaks into two lighter nuclei, there will be a tremendous amount of energy which will release as the result of this whole reaction, right? So in this way we can say that it is an exothermic reaction, right? Exothermic reaction is the reaction in which the heat is released after the reaction. And the endothermic reaction is the reaction in which we give the heat to the system, right? So this, we will study about more detail of this process in the last chapter. This is just to make a clarification over here that what is the nuclear fission and fusion reaction, because we are studying about the energies. So this reaction gives us a huge amount of energy. And with that huge amount of energy, we generate electricity. And that method is called nuclear power production, right? Like there are several other ways, that is hydel power plant or hydel power production. Energy we use the water energy, the potential energy of the water which we throw from a height, right? And etc. Another one is the nuclear fusion reaction. Nuclear fusion reaction is the reverse of fission. That it is the combining of two lighter nuclei. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दो lighter nuclei combine होते हैं and it will form a heavy nucleus as a result with the release of energy. This is also an exothermic reaction, and in this reaction the energy is very, very high as compared with the fission reaction, right? But there is a limitation of starting this nuclear fusion reaction in this earth or in this world, right? Why? Because there's a limitation that this reaction requires, the fusion reaction requires about millions of degrees centigrade to start. Otherwise it will not start, it will not fuse two lighter nuclei into a heavy nucleus. Okay, usually it happens when some stars are formed, right? It happens in the galaxies, it happens in the sun. So last chapter में हमारे पास एक star formation का topic है, उसमें हम देखेंगे how this will happen, right? But this is a more high energy amount of reaction, right? So it is not possible to be performed here on Earth because it starts millions of degrees of centigrade to start. Okay, so it was just a recap क्योंकि last class में बहुत जल्दी में पढ़ा गया था ये. And about the efficiency, what is efficiency? Efficiency ये आपके एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है. जब भी वर्क पावर एनर्जी का कोई क्वेश्चन आता है तो एफिशिएंसी उसमें जरूर कैलकुलेट करने को दी जाती है ज्यादातर. Efficiency gives us basically the performance of any system ना, any system में कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं एनर्जी आ रही हो, पावर भी आ सकती है, कोई भी XYZ कोई भी चीज आ सकती है. एनर्जी एक जेनेरिक फॉर्मूला है, ये सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके पीछे साइकी क्या है कि the logic is that it is the ratio of power output, and this power output is obviously useful power output. आपने नोट्स में लिख लीजिएगा useful power output, because there are certain power which is lost. Power is also lost in the surroundings as well. So to calculate the efficiency we will put here the useful power output. इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वाटर को बॉईल किया, ठीक है, एक पैन के अंदर वाटर रखा, उसको मैंने बॉईल किया, हीट दी फ्लेम से. अब फ्लेम से जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जा रही होगी ना, वाटर में से जो स्टीम निकल रही है, सॉरी स्टीम नहीं, वाटर जो गर्म हो गया है, जो गर्म वाटर है जो बबल्स बना रहा है, उसके अंदर जरूरी नहीं उतनी हीट ट्रांसफर हुई हो. क्यों? क्योंकि कुछ जो वाटर का कुछ पोर्शन है वो स्टीम बन के एटमॉस्फेयर में चला गया, तो वो तो लॉस हो गया ना, मास कम हो गया वाटर का. इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जो इनपुट पे हीट एनर्जी दी थी वो आउटपुट पे नहीं आई, टोटल कुछ ना कुछ उसमें से लॉस हुआ है. और ये हमेशा होगा, दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, ये हमेशा होगा. इसीलिए हम क्या करें, इनका रेशियो ले रहे हैं. पावर आउटपुट हमेशा पावर इनपुट से कम ही होगी, क्योंकि कुछ पावर या एनर्जी प्रोसेस की वजह से लॉस होती है सराउंडिंग्स में, या फिर उस प्रोसेस की लिमिटेशन की वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स अगर रन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मशीन को रन करने के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी नेचुरली चाहिए आप उससे ज्यादा देते हो. क्यों?
उसकी वजह ये है कि दो पार्ट्स आपस में, दो व्हील्स हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर रहे हैं, तो उनकी फ्रिक्शन होगी। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, द इनपुट पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटपुट पावर और एनर्जी, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी से हम यही देखते हैं कि कितनी इनपुट दी, उसके अगेंस्ट कितनी आउटपुट हमें मिली, यूजफुल पावर आउटपुट या यूजफुल एनर्जी आउटपुट। ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इस पर बेटा? किसी का क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। ओके, तो हमें ये कंपैरिजन है बेसिकली। एफिशिएंसी इज व्हाट? एफिशिएंसी इज द कंपैरिजन ऑफ द इनपुट गिवन टू एनी सिस्टम against the output, the useful output delivered by the system। यूजफुल क्यों कह रहा हूँ? जो एनर्जी लॉस है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसको काउंट नहीं करेंगे तो वो लॉसेस में जाएगा और बाकी सब यूजफुल एनर्जी और पावर में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 100 जूल की एनर्जी इनपुट पे दी, 100 जूल की एनर्जी के अगेंस्ट मुझे 70 जूल आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि अगर पानी गर्म करने की एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो मैंने 100 जूल फ्लेम से दिए एनर्जी की फॉर्म में। जो मैंने वाटर देखा उसके अंदर अगर मैं कैलोरीमीटर लगाऊंगा, कैलोरीमीटर आपकी एनर्जी कैलकुलेट करता है, तो कैलोरीमीटर मुझे 70 जूल की एनर्जी दे रहा है। इसका मतलब आई विल एज्यूम दैट 30%, यानी कि 30 जूल एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। ओके, सहर आपके मैसेज से लग रहा है सर, फ्रॉम दिस फॉर्मूला डू वी फिगर आउट यूजफुल पावर और वेस्टेड? Sir, we don't calculate useful power from this formula. Basically, useful power is being given to us in the question. From this formula, we determine the efficiency of the system. What is efficiency? Basically, efficiency is the ability of any system or any method to secure the maximum input power towards the output, right? जैसे मैं अभी कह रहा हूँ ना कि 100 जूल की एनर्जी दी और 70 जूल ट्रांसफर हुई, इसका मतलब 30 जूल लॉसेस है, यानी कि दिस सिस्टम इज 70% एफिशिएंट। अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ किसी और सिस्टम से जहां पर और अच्छा मैंने डिजाइन किया हुआ सिस्टम, लॉसेस कम किए हुए बाय एक्स वाई जी रीजन, वो अभी आपका आधार है यहाँ पर, वो नहीं है, क्या कहते हैं, टॉपिक नहीं है, तो हम सिर्फ अज्यूम करते हैं। तो अगर किसी और से कंपेयर करता हूँ, उसमें मैंने 100 जूल की एनर्जी इनपुट पे दी और आउटपुट पे 80 जूल आ रही है, यानी कि जो वाटर गर्म हो रहा है वो 80 जूल की एनर्जी रखता है। सो व्हाट आई विल से दैट द फर्स्ट वन इज द लेस एफिशिएंट एंड द सेकंड वन इज द मोर एफिशिएंट, राइट? डिड यू गेट माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। इसी का क्वेश्चन है बेटा? सर एक और बात। जी उस्मान बोलिए। सर मैं कह रहा था हमारे सेमेस्टर में खाली न्यूक्लियर पावर की कोई कैलकुलेशन तो नहीं है ना, खाली एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस ही आएंगे ना? बेटा लास्ट चैप्टर में तो आएंगे ना, और लास्ट लास्ट चैप्टर चैप्टर में में सर कैलकुलेशन भी होगी, मेथड भी होगा, इक्वेशन भी होगी, उसकी बैलेंसिंग भी होगी, ठीक है। तो सर आपके अकॉर्डिंग ये चैप्टर आसान है या तो बहुत ही हार्ड लेवल है? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, पूरा एक क्वेश्चन बनता है, जब आएगा जब देखेंगे, अभी छोड़ दो, अभी सही है जिस, सर। ठीक है, वो ऐसा करवा दूंगा इंशाल्लाह, अपने नाम से ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। चलो, बहुत आसान चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट है, आपका भी इंशाल्लाह फेवरेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ी सी लॉजिक है, वो समझने की बात है सिर्फ। पूरा एक क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का, सेक्शन बी का, ठीक है ना, तो इसको तो सोचना ही मत छोड़ने की। ओके, यस सर। और सर आपने असेसमेंट के पेपर्स चेक कर ली? हाँ बेटा, मैं असेसमेंट के नहीं हो तो मुझे यार मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए मैं तुम लोग की क्लास नहीं ले पाया था। तो अभी मुझे मिलेंगे तो मैं चेक करूंगा, वो टेस्ट चेक कर लिए तुम लोग के, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो दोनों एक साथ ही दे दूंगा, ठीक है। सही है सर। और भाई असाइनमेंट लेके आना सब अपना, जो मैंने कहा है फॉर्मूला शीट बनानी है सबको। इस बार तो तुम लोग बच गए हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं बचोगे। सर मेरी मोस्ट ऑफ दी प्रिपेयर हो गई है, खाली लास्ट चैप्टर बाकी है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये बेटा एफिशिएंसी, जो लोग लेट आए उनके लिए थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, जस्ट 2 मिनट का। हमने एफिशिएंसी को डिस्कस किया। एफिशिएंसी क्या है? बेसिकली ये एबिलिटी है किसी भी सिस्टम को इनपुट जो उसको मिल रहा है पावर या एनर्जी के फॉर्म में, उसको आउटपुट पे कितना कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 100 जूल की एनर्जी देता हूँ, किसी पानी को गर्म करता हूँ चूल्हे को फ्लेम से, तो 100 जूल की मैं फ्लेम की एनर्जी दे रहा हूँ, लेकिन जो वाटर है उसको मैंने चेक किया तो उसमें 70 जूल ट्रांसफर हुई है, तो मतलब 30 जूल मेरी एयर में लॉस है, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये सिस्टम 70% एफिशिएंट है, 30% इनएफिशिएंट है।
और इसको मैं किसी और से कंपेयर करूंगा तो फिर मैं देखूंगा अच्छा उसमें 80 आ रही है तो वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन एग्जामिनर पूछता बहुत है। इसमें फॉर्मूले के अंदर एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है, तो मैंने कहा ये लिख लो, पावर आउटपुट या एनर्जी आउटपुट है ना ऊपर न्यूमिनेटर में, इधर लिखो यूजफुल पावर आउटपुट। या हमें टोटल पावर आउटपुट नहीं देना, यूजफुल देना है। यूजफुल का मतलब जो कन्वर्ट हुई है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यूजफुल पावर आउटपुट न्यूमरेटर में होगा और टोटल पावर इनपुट जो है वो डिनोमिनेटर में होगा। यूजफुल मतलब हम सिर्फ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वही लेंगे जो हमारे काम की पावर होगी ना। जाहिर है बाकी तो लॉस है, लॉस को हम फॉर्मूले में नहीं लेंगे। अगर लॉस को फॉर्मूले में ले लिया तो दोनों ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, वन आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या पूछ रही थी सर, समझ नहीं आई मुझे तुम्हारी बात, दोबारा कहो। सर मैंने यही पूछना था कि इस फॉर्मूला में कौन से वाला लेते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में मुझे लगा तुम कह रही हो उसे डिटरमाइन क्या करते हैं। डू वी फिगर आउट तुमने लिखा ना, तो मुझे लगा तुम चाह रही हो कि इसमें से क्या निकालना क्या चाहते हैं हम। चलो ठीक है, समझ आ गया ना। जी सर। इसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं, क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज में लेते हैं। ठीक है, इतने परसेंट एफिशिएंट, वरना पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि इनपुट आउटपुट बराबर हो जाए, यूजफुल पावर आउटपुट और पावर इनपुट इक्वल हो जाए? ऐसा कब होगा? ऐसा होता नहीं कभी। ये तो हमारी एक खाम ख्याली है जिसको उर्दू में कहते हैं, या मिसकंसेप्शन कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में। बेसिकली दिस इज ओनली हैपन इन द आइडियल सिचुएशन, एंड आइडियल सिचुएशन नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, सो वी ओनली assume that, but we have to deal with the real situation. So for efficiency, this value cannot be same. The both values, numerator and denominator, cannot be same. Otherwise, the answer would be 100. And no any system in this world, in this universe, has the 100% efficiency. Nothing is perfect except Allah. ठीक है, तो यहाँ लॉसेस तो आएंगे। एनर्जी कन्वर्ट होगी, जाहिर है, टोटल एनर्जी तो नहीं लेंगे आउटपुट पे, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी तो और मास दोनों कंजर्व रहते हैं। तो हमें टोटल तो लेना ही नहीं है, हमें यूजफुल लेना है। ठीक है, तो हम सिस्टम को डिटरमाइन कर सकेंगे। ये वही वाली बात है कि जो मैं तुम लोग को एक मतलब मिसाल दे रहा था कि जो वो हमारे पास फिलामेंट लैंप है वो ज्यादा गर्म होता है तो वो 70% लॉस देता है, 30% लाइट देता है। ठीक है, और जो दूसरी है CFL है जो कि ट्यूबलाइट है, वो 50% 40% लॉस देती है, 60% एफिशिएंट है। तो बात ये है कि दोनों सिस्टम लाइट दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट कौन सा हुआ? ट्यूबलाइट, CFL, है ना। तो यहाँ पर अच्छा कंपैरिजन आ गया। ठीक है भाई, वर्क पावर एनर्जी में किसी को कोई मसला है तो सवाल पूछ ले, इसी का टॉपिक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग वर्क सर अभी पावर? तक तो हाँ, अभी तक कोई मसला नहीं है सर। चलो गुड है। अब हमारे पास नया टॉपिक आया है जिसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में सुना किसी ने, क्या होता है? जी सर, लास्ट ईयर सुना था मगर अभी सर याद नहीं है, अभी रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। चलो देखते हैं। देखो भाई, प्रेशर के बारे में बहुत सुना, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रेशर को फोर्स से कंफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, फोर्स बढ़ गई है। जी जी, एग्जाम प्रेशर तो होता सर है। ये सर जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा ना? क्या बात है उस्मान, जबरदस्त, ये तुम्हारे को सही बात सर समझ में आई है। सर इसकी एग्जांपल हम नीडल भी ले सकते हैं। क्या बात है उस्मान, अगर नीडल तुम यहाँ होते गले लगा लेते तुमको। आला बात करी तुमने। नीडल लेडीज की हील्स हो गई। अरे जबरदस्त भाई, क्या मिसालें ला रहे हो भाई, तुम पढ़ा लो यार आगे तो आज। बहुत अच्छे, चलो गुड है। सर अभी आप सर आपके इतना विजन क्लियर नहीं है, नहीं तो अल्लाह हिम्मत देगा तो पढ़ा भी लेंगे। इंशाल्लाह, हर चीज का वक्त होता है। चलो अच्छी बात है, चलो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी लोग क्लियर करते हैं। देखो भाई, प्रेशर क्या है? ये एग्जाम प्रेशर किसी ने लिखा है और बात सही है, वो भी होता है। अब वो प्रेशर वो हाइपोथेटिकल प्रेशर है, मैं रियल प्रेशर की बात करूंगा। बेसिकली हम किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में, प्रेशर और फोर्स कोई एक ही चीज है, मिली जुली चीज लगती है, हमें दोनों को बिल्कुल समझो जुड़वा भाई लगते हैं ना। ऐसा उसमें थोड़ा सा फर्क है। फोर्स तो आती है, लेकिन फोर्स क्या है? जैसे डेंसिटी हमने पढ़ा था, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है। हम कहते हैं हैवीनेस को डिटरमाइन करती है, कौन सी चीज लाइटर है कौन सी हैवी है। हमने कहा था कि 1 kg कॉपर और 1 kg जो है कॉटन बराबर होगी, आपने कहा नहीं वो तो हैवी होगी।
हालांकि वो केजी में दोनों। आप कंपेयर किससे कर रहे थे? आप उन दोनों के वॉल्यूम से कंपेयर कर रहे थे, तो मास पॉइंट वॉल्यूम, आप डेंसिटी की बात कर रहे थे। इसी तरह से आपको कहते हैं ना बहुत प्रेशर लगाया, फोर्स बहुत हाई है, तो उसमें सिर्फ फोर्स का रोल नहीं होता, उसमें एरिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लग रही है वो उसका प्रेशर डिटरमाइन कर रही है। अच्छा, एक चीज जरूरी लिख देना यहाँ पर, यहाँ मिसिंग है, प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स, ये याद रखना, परपेंडिकुलर फोर्स। मैं भी यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस पर लिख लो, फिर मैं एग्जांपल करके बताता हूँ। द परपेंडिकुलर फोर्स अपने नोट्स में लिख दो। नोट्स सबको मिल गए? पास पेपर्स नोट्स किसी के रह तो नहीं गए? कोई जवाब दे दे, अगर नहीं रहे तो चुप रहे, और अगर रह गए तो नहीं बता सर। चलो अच्छी बात है। अहमद तुम ले लो, अब मेरे ख्याल से आधा साल गुजरने वाला है, अब तो कुछ हिम्मत करो। कहते हैं इंशा जी अब कुछ करें, इस शहर में दिल को लगाना क्या। मिले हैं सर सलमान साहब, ठीक है चलो गुड है। अच्छा देखो, यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, सही है, नजर आ रही है टेबल सबको? ये फ्लोर है, वो थोड़ी सी लकड़ी हो गई है टेबल, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके सेट करता हूँ। ठीक है, ये टेबल है। इस टेबल पे मैंने क्या किया भाई, इस टेबल पे मैंने एक स्पंज रख दिया, ठीक है। इस पे मैंने फोर्स लगाई एफ नीचे की तरफ, ठीक है। ये फोर्स और ये स्पंज का आपस में एंगल कितना बना? 90 डिग्री बन गया, ऐसे ही। तो ये 90 डिग्री फोर्स, इस फोर्स की वजह से इस एरिया पे प्रेशर बनेगा। इस ये फोर्स जो है ना एज अ प्रेशर काम करेगी यहाँ पर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये अच्छा, इसकी जगह अगर कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए और अगर मैं सेम फोर्स लगाऊं लेकिन एरिया मैंने बढ़ा दिया, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि छोटे ऑब्जेक्ट को मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ, एरिया कम है तो प्रेशर हाई होगा उसके ऊपर, फोर्स ज्यादा लग रही है, उसको फील ज्यादा हो रही है। इसको इसी तरह एज्यूम करो, इसलिए डेंसिटी में एज्यूम किया था, ठीक है ना। बड़े एरिया में, एरिया क्योंकि आपका बड़ा हो गया, प्रेशर आपका रिड्यूस हो गया। अब आपको सेम प्रेशर अप्लाई करने के लिए हाई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर एरिया छोटा है तो थोड़ी सी फोर्स भी काफी होती। अब क्या हो रहा है, ये बड़ा हो गया, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं उन पे हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, उनको कंप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए। क्या वजह है? अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चल रहा हूँ कहीं फ्लोर पे, फ्लोर पे चलते हुए मेरा एक स्टेप पूरा फ्लोर से लग रहा है, मैं एक प्रेशर लगा रहा हूँ, बहुत तरीके से चल पा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी सी होशियारी करूँ और एक पाँव उठा के गीले फ्लोर पे चल रहा हूँ तो मुझे चलने में डिफिकल्टी होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरा बेस एरिया छोटा हो गया, प्रेशर कम हो गया, मुझे चलने में मुश्किल हो रही है। क्योंकि चलते हुए हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं फ्लोर पे, फ्लोर हमें दोबारा रिवर्स फोर्स लगा तो हम चल सकते हैं। इसमें दो मसले हो गए, एक तो हमारा एरिया कम हो गया, इसकी वजह से प्रेशर हमारा कम, फोर्स कम हो गई ना, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा चलने के लिए। और एक ये कि हमारा ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उड़ गया है, इस वजह से हम स्टेबिलिटी में भी नहीं है, गिर जाते हैं ना लोग जो पाँव उठा के चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अब उस्मान साहब ने एक मिसाल दी, इन्होंने खवातीन की हील्स पे बड़ा काम किया, तो ये कह रहे थे कि भाई देखो हील पहन के खवातीन चलती हैं तो आपने देखा होगा ऐसा लग रहा होता है कि खतरनाक माहौल है, बिल्कुल ही किसी के ऊपर या अपने सर के बल गिर जाएंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो आपके टोस का एरिया था पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था, एरिया नॉर्मल था तो कम फोर्स लगाने में आराम से चल पा रही थी। अब उनका मसला ये है कि उनका एरिया छोटा हो गया है, अब उनको सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए हाई फोर्स भी लगानी है, ठीक है, और पॉइंट पे लगानी है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है, वरना गिर जाएंगी, टॉपल कर जाएंगी। तो यहाँ पर दो चैप्टर कवर हो गए, मोमेंट्स के भी और प्रेशर का भी, ठीक है। तो बच्चों समझ में आती है बात? जी सर। जी सर। गुड। मैं बात करता हूँ इस फोर्स की, ये फोर्स इस स्पंज से या इस टेबल के ऊपर रखे ऑब्जेक्ट से पैरेलल है, तो ये फोर्स इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेगी। इसको अगर ये ऊपर से कंप्रेस हो रहा है ना, तो ये फोर्स इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेगी इस सरफेस से, लेकिन यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेगी। अब ये क्या होगा, अब ये फोर्स यहाँ से परपेंडिकुलर हो गई, सॉरी, ये फोर्स अब यहाँ से परपेंडिकुलर, अब यहाँ 90 है,
तो मैं यहाँ की तो बात नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ भाई ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, लेफ्ट से राइट, तो क्या ये प्रेशर अप्लाई कर रही है इस सरफेस पे, तो इस ऊपर वाली सरफेस पे तो नहीं कर रही, क्योंकि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर वो फोर्स ही नहीं है। तो pressure will always be there if the force is perpendicular to the area, and we know that if the area is larger, pressure will reduce for the same force. So if we want to make the pressure constant, we have to increase this force. समझ रहे हो बात को? एक हाँ, एरिया बढ़ाया तो आपको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सेम प्रेशर आपको चाहिए, वरना प्रेशर अल्टीमेटली आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी चीज में हाई प्रेशर फील हो रहा है तो आप क्या करें, उसका एरिया बढ़ा दें, उसका प्रेशर खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जंपिंग कैसल है, जंपिंग कैसल है आपके पास, अब आपने कहा उसमें गैस भर दी है, वो फूला हुआ है, अब लोग जंप कर रहे हैं, वो जोर जोर से उछला रहा है लोगों, क्योंकि उसमें हवा ज्यादा है, हाई प्रेशर है। उसका तरीका क्या है, उसका दूसरा जंपिंग कैसल ला के कपल करें, अक्सर होता है ना डबल जंपिंग कैसल होते हैं, तो एक्सटेंड करें, वो फनल से ज्वाइन करें, वो सेम गैस ट्रांसफर कर दें, वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जमीन को आ जाएगा। अब वो जब जंप करोगे ना, वो आपको वापस नहीं फेंकेगा उस तरह से। समझ रहे हो, एरिया बढ़ाया तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, और प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो फिर फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? फोर्स बढ़ाएगा तो बढ़ाओ जी। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. और कोई जिसको Yes, sir. कंफ्यूजन हो? अच्छा, अब एक सर अगर हम्म, अगर एरिया बढ़ गया है तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमें फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी, वरना प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। सही है सर। अच्छा सलमान, बेटा समझ में आ रहा है? मोहिब, चलो गुड। आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमने एक्सप्लेनेशन ले ली, अब सिर्फ गो थ्रू करना है। हमारे टॉपिक को पहले डिटेल में समझते हैं, अब हम पढ़ेंगे ना, हमें बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करेगा वो। क्या लिखा हुआ है? प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स, पहले तो करेक्शन करो, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का मतलब समझते हैं ना, अभी तक तो हम इतनी का पर यूनिट पढ़ चुके हैं, हमारा मतलब होता है 1 1, यानी कि ऐसा यूनिट में अगर हम चल रहे हैं तो फोर्स होगी न्यूटन में और एरिया होगा मीटर स्क्वायर में। सही है ना? तो इसका डिराइव यूनिट क्या बना, ऐसा यूनिट डिराइव यूनिट क्या बना, हम फॉर्मूला में डालेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका मशहूर नाम जो है ना, जो कॉमन नेम है वो पास्कल्स है। प्रेशर का जो कॉमन यूनिट, यूनिट जो है ना वो पास्कल्स है, जो हम पास्कल के नाम पर रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पास्कल लॉ दिया था और इसके प्रेशर के ऊपर बहुत काम किया है। बायोन्सी कहलाती है ये जो फील्ड है ना फिजिक्स की, इसको बायोन्सी कहते हैं। इसका मतलब प्रेशर अप्लाई करने से जो फोर्सेस डेवलप होती हैं, ये जो स्टडीज होती है, बायोन्सी कहते हैं। तो उन्होंने इसमें बड़ा काम किया, पास्कल लॉ दिया है, तो इनके नाम पे थोड़ा सा इनको हमने एक एजाज बख्शा है, और पास्कल प्रिंसिपल। जी जी। तो अब ये लिखते हैं, अब इसको पूरा पास्कल नहीं लिखते हैं। अब ये आपके ऊपर है, एग्जामिनर ने इस पे कोई कैद नहीं रखी हुई, ठीक है, और मतलब मैं भी का नंबर नहीं काटूंगा, जाहिर है। मैं पास्कल लिखता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कभी दिल चाह तो लिख देता हूँ, लेकिन लंबा पड़ता है इसलिए मैं पास्कल लिखता हूँ। तो आप लोग, हाँ जूल है, जी जी। अच्छा, इन दोनों को बाकी में तो आपको लिखना जरूरी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन जो है वो फोर्स का है, हालांकि उसका एक्चुअल यूनिट क्या है, केजी इंटू मीटर पर स्क्वायर एम है ना, लेकिन इधर इधर नेसेसरी नहीं है, इधर आप कुछ भी लिख सकते हो, उधर आपको लिखना ही न्यूटन है। सही है, तो इधर आप पास्कल लिख दो, पीए लिखते हैं, न्यूटन में भी वही न्यूटन मीटर लिख सकते हो, जूल में भी ऑप्शनल है, इन दोनों में ऑप्शनल है। ऐसा यूनिट आपके पास आ गया। अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से? दो ही फैक्टर्स इन पे डिपेंड करते हैं, एक तो फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ग्रेटर इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट द लार्जर द प्रेशर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से प्रोपोर्शनल होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि अगर सेम एरिया है, जिस पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसका हाई प्रेशर होगा, यानी दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है, लेकिन जिसपे हाई प्रेशर लगेगा, हाई फोर्स लगेगी, उस पे हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है? एरिया इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। देखो, एरिया इन कांटेक्ट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिया इन कांटेक्ट क्यों? जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी पीछे कि सरफेस बड़ी मैटर करती है। मैं परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगा रहा हूँ टॉप से, तो वो टॉप सरफेस पे प्रेशर कैलकुलेट करेगा। दूसरी फोर्स मैंने लेफ्ट साइड से लगाई थी, तो वो लेफ्ट से कैलकुलेट करेगा, फिर वो टॉप पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो आपको ये पता बहुत जरूरी होना चाहिए कि किस सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि अक्सर पेपर में जो है ना फोर्स किसी और जगह की दी जाती है कभी, और पूछा नहीं वहां क्या जाता है प्रेशर, तो फिर आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि यहाँ फोर्स लग भी रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, आगे चले।
जी सर। ओके, एग्जांपल है हमारे पास. सपोज अ सिंगल ब्रिक इज लाइंग ऑन अ टेबल. एक सिंगल ब्रिक है. इफ अनदर ब्रिक इज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट वन, देन द प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द वेट. अगर एक ब्रिक रखी है, जैसे एग्जांपल हम यहाँ दिखाते हैं. ये टेबल है, इसमें मैंने एक ब्रिक रखी. इसका एक प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, इसने क्या किया, वेट है ना इसका, ये नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और ये एरिया है इसका, एरिया ए. अब इस पे इसी साइज की दूसरी ब्रिक रख दी. अब क्या हो रहा है, एरिया तो सेम है, फोर्स डबल हो गई. W प्लस डब्ल्यू, उसका भी W आ गया ना, दूसरे का भी. तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया, एरिया सेम हुआ. एक चीज कांस्टेंट रखनी, मैंने डेंसिटी में कहा था ना, कोई एक चीज आपने कांस्टेंट रखनी है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों को चेंज करो. दोनों को चेंज करोगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे. ठीक है. अच्छा, अब हम एग्जांपल देखते हैं दूसरी. अच्छा, एग्जांपल दूसरी है. A brick lying vertically on the table exerts more pressure than horizontally because there is a less area in contact with the table in vertical position. ये बात समझ में आती है सबको? अगर ब्रिक वर्टिकली यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल की जगह पे, जैसे ये प्रेशर है, इसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रिक ऐसे रख दी. ये इसी ब्रिक को यूं स्ट्रेट खड़ा कर दिया. सही है ना. तो इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर हाई होगा, क्योंकि दोनों ब्रिक्स का वेट तो सेम है. P is equal to F upon A. एग्जैक्टली, वेट तो कांस्टेंट है. ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है. लेकिन ये क्या हुआ, जिसका कम होगा उसका प्रेशर हाई होगा. तो इसका मतलब ये वाला जो ब्रेक है, ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही होगी एज कम्पेयर विद दिस ब्रेक. ठीक है ना. अच्छा, ये कोई स्टूडेंट कभी सवाल किसी एक आध नहीं पूछा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस डिटरमिन द फोर्स अप्लाइड टू दैट एरिया. राइट. बात सारी ये कि इतने बड़े एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा आ गए, तो जो फोर्स वेट की है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो पर मॉलिक्यूल तो पर एटम तो कम आ गई ना फोर्स. और यहाँ पर क्या है, कम मॉलिक्यूल है, इसके मुकाबले में आधे से भी कम है, तो यहाँ ज्यादा आ गई फोर्स. ये उसी तरह की, अगर एक 2 पाउंड का केक है, खाने वाले 10 हैं, और उसी 2 पाउंड के केक में 20 आ जाए, तो फिर आपके स्लाइसेस छोटे हो जाएंगे, एरिया कम हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स तो सेम है, मास तो सेम है केक का. तो खाने वाले आप कम करें तो फिर आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे इस ब्रिक को मिल रहा है. और यहाँ पर ज्यादा आ गए खाने वाले, या मॉलिक एटम ज्यादा आ गए इस एरिया में. तो इस एरिया में जब एटम ज्यादा आए तो इसके ऊपर फोर्स फिर कम आई, प्रेशर कम हो गया ना, इसका एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया. तो सबको क्लियर है बात? जी सर। ओके. अच्छा भाई, उसके बाद जो है वो उस्मान की मिसाल आ गई है माशाल्लाह. उसने लास्ट टाइम मुझसे पढ़ा था, इसलिए याद भी उसको. A girl wearing exerts more pressure than the flat sole shoes because area in contact with heel shoe is less. ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हील शूज का एरिया कांटेक्ट में जो आ रहा होता है वो बहुत कम आ रहा होता है. ज़ाहिर एक स्टिक टाइप होती है, तो जब एरिया कम तो प्रेशर हाई प्रेशर फील होता है उनको, तो उनको अपना फुट मेंटेन करने में मुश्किल हो रही होती है. इस वजह से वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं. सोचिए आप लोग अब फिजिक्स पढ़ के, शायद इंशाल्लाह आप लोग ट्राई कीजिएगा कि सोचिए कि अभी ये फोर्स मेंटेन करके कैसे स्टेबिलिटी रखनी है. मतलब आप कर तो लेंगे, लेकिन आप फिर दावत मिस कर जाएंगे, बहुत घंटे लग जाएंगे आपको पहुंचने में. क्या रिलेट होता है? क्या कह रही है साहिल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. चलो, मैसेज टू एवरीवन किया करो ताकि सब समझ सके कि क्वेश्चन क्या आ रहा है तुम्हारी तरफ से. सर इसकी एक एग्जांपल सिरिंज की भी ले सकते हैं ना? सिरिंज की एग्जांपल लोगे? सर वैक्सीन की, जैसे इंजेक्शन हो गया, पीछे सिलेंडर होता है और आगे एकदम नीडल. अच्छा, क्या बात है. मतलब यार उस्मान भाई, आप तो पीएचडी कर लिया है प्रेशर में. बेहतरीन. ये सारी एग्जांपल आगे आएंगी बेटा. मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट अच्छा कर रहा हूँ. मुझे अच्छी बात ये लगी कि तुम्हें याद है, या तुमने पढ़ा है खुद से क्लास से पहले, ये अच्छी बात.
सब लिखा हुआ है लेकिन ये पता होना चाहिए। वेरी गुड। ऐसे ही होता है, सिलेंडर जो अंदर होता है जिसमें फ्लूइड होता है या मेडिसिन होती है इंजेक्शन की, वो बड़े एरिया में होती है इसलिए उसमें प्रेशर कम होता है, लेकिन जब वो नीडल से निकलती है तो हाई प्रेशर हो जाता है, तो एरिया कम हो गया, मास तो उतना ही है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी तक हमने जो है प्रेशर इन सॉलिड्स पढ़ा, सारे सॉलिड देख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर इन लिक्विड। ये थोड़ी सी जो है ना मुश्किल चीज है, मुश्किल तो खैर नहीं है, तो आसान, लेकिन इसके मसले बहुत होते हैं, सवाल पेपर में इसके आते हैं टेढ़े, उसको हम सीधा करेंगे सॉल्व करके। ठीक है, प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला आते जा रहे हैं ना, मैं फॉर्मूला शीट इनकी बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है ना, आपको डिटेल नहीं लिखनी, आपको नोट्स कॉपी नहीं करने मेरे, आपको सिर्फ नाम लिखना है, प्रेशर इन सॉलिड एफ अपॉन एफ, प्रेशर इन लिक्विड rho GH, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करने लगो ना तो आपके सामने रेडिली फॉर्मूलाज अवेलेबल हो, आपको बार बार पलटना ना पड़े, चैप्टर के अंदर से ढूंढना ना पड़े। ये होता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये फॉर्मूला शीट बना लोगे ना, एग्जाम के टाइम पे टेंशन नहीं होगी, नोट्स खोल के भी नहीं देखोगे फिर। अच्छा भाई, तो ये मुझे सातवां चैप्टर, pressure of liquid is related with the definition with the formula over here, P is equal to rho GH। rho क्या है, क्या वो नहीं, रो है ये, RHO, इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ लिखा हुआ ना। G है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, H क्या है, हाइट नहीं है, डेप्थ है, जब हाइट होता है ना H। अब यहाँ इनको अच्छा लगता है, पूरी दुनिया की फिजिक्स में यही लिखा होता है rho GH, हालांकि rho GD लिख देते क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लिखा है तो हमें फॉलो करना है भाई, गुलामाना कौम है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, दूसरे की मानेंगे, अपनी बना ले। तो rho GH, तो याद ये रखना कि H होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ H का मतलब है हाइट नहीं है, यहाँ इसका मतलब डेप्थ है। क्यों? क्योंकि सरफेस ऑफ लिक्विड इज द 0 पॉइंट, वहां से हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर पड़ता है ना भाई। ये गिलास है पानी का, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो टॉप पे जो हो गए, टॉप पे जो सरफेस होगी, सबसे कम प्रेशर तो वहां होगा ना, क्योंकि पानी वहां है ही नहीं, होता हवा आ रही है ऊपर से सिर्फ। जैसे जैसे नीचे पानी में जाते रहोगे आप पे प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो नीचे जा रहे हो तो आप हाइट डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो, लेकिन उसको हाइट नहीं कहते, उसको डेप्थ कहते हैं। जैसे स्विमिंग पूल में हम जाते हैं, हम सरफेस पे फ्लोट करते हैं, हम पे कम प्रेशर होता है, कभी अंडर वाटर जाएंगे हाई प्रेशर को फौरन बाहर आ जाते हैं, है ना। स्विमिंग कर रहे हो आप, किसी ना कोई स्विमर हो मेरी तरह, मैं तो छोड़ चुका हूँ, अरसा हो गया, लेकिन अभी दोबारा 1 महीने पहले शुरू की थी मैंने। तो हाँ, ड्रीम वर्ल्ड नहीं, मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स KMC कॉम्प्लेक्स में करता हूँ। हाँ देखा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंडर वाटर स्विमिंग में क्या होता है, आपको हाई प्रेशर मिलता है, तो उससे क्या होता है, जब भी आप जाओगे ना फौरन वापस आओगे, और जितना हाई मास होगा ना उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रेशर अप्लाई होता होगा, बढ़ता जाएगा। तुम ये देखो ना, कोई अंडर वाटर स्विमिंग करता है, उसको जमीन पे रहने के लिए कितनी अपने आप को कुव्वत लगानी पड़ती है जिस्म के ऊपर, उसको सीने पे फील होती है पूरी फोर्स, वरना पानी वापस फेंक देगा ना बाहर उसको। ठीक है, तो रॉ GH क्या है, इट इज द फॉर्म, वो बताऊंगा आगे, टॉपिक आएगा पूरा इसके अंदर। हाँ, उसका वो लंग्स का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इस वजह से वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, वो डिफरेंट चीजों आगे बताऊंगा, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो रॉ GH, P इक्वल्स टू रॉ GH। रॉ GH में रॉ है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, स्मॉल g आपको पता सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट 10 है, h क्या है, डेप्थ। ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, तो इसका मतलब ये कि अगर 3 अलग अलग लिक्विड हैं, 3 अलग अलग लिक्विड हैं, डेप्थ सेम है उनकी, इसकी एग्जांपल यहाँ ड्रॉ करते हैं। चलो, या 3 मिनट रह गए, मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोग रीजॉइन करें, लेकिन फौरन ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, सेम लिंक है।